रूबरू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप देख रहे हैं अपना खास प्रोग्राम रूबरू। जी हाँ, रूबरू प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं किसी न किसी एक खास मेहमान से। आज हमारे स्टूडियो में एक खास मेहमान मौजूद हैं। उज़्बेकिस्तान से मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ ज़रीना जहांगीर को, जो कि है एक अंतर्राष्ट्रीय जर्नलिस्ट, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट। ज़रीना, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। Namaskar. Thank you नमस्कार। so much for seeing me for this hospitality. I'm so grateful for you. Thank you. जी। Appreciate it. अ, ज़रीन, मैं आपसे पहला ये प्रश्न करना चाहता हूँ कि आपका एक वेंचर है वन लव इंडिया। तो आप इस वन लव इंडिया के माध्यम से क्या कहना चाहती हैं? भारत के साथ आपका कैसा रिश्ता है? इसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ हमें। Huh. Let me introduce myself. I'm Indologist, हुँ, हुँ। certified Indologist, international journalist, and I'm running my project One Love India in Uzbekistan, हुँ, हुँ। promoting Indians in Uzbekistan and vice versa. हुँ, I love India. I love India's culture, and actually, this project about all this, which connected to India, हुँ, about the Indian citizens who are coming to Uzbekistan and why do they stay in Uzbekistan? What do they love? What difficulties even they faced, हुँ, हुँ, and what new they have opened in our culture and in our Uzbek environment. It can be difficulties even in cultural aspect and linguistic aspect. हुँ, So this is about Indians in Uzbekistan mostly. हुँ। ज़रीन, थोड़ा-सा ये भी बताएँ कि देयर आर सिमिलैरिटीज़ between India and Uzbekistan. So what kind of similarities are there, as far as the people are concerned, as far as the rituals are concerned, festivals, everything. So do you find any similarities between India and Uzbekistan? Of course, बहुत सारे जो आपने कहा था, Mm-hmm. even rituals, even traditions and culture, even Mm-hmm. in in our dress, Mm-hmm. some kind of Mm-hmm. you see, and in our mentality, Mm-hmm. and so many similarities between our countries. Mm. Yes. Do you feel any connection with India? Because I can see, because right from the beginning you are inclined to this culture, और आप बहुत सारे लोगों के साथ में आप मिलती-जुलती रहती हैं, इंडिया के बारे में बात करती हैं, इंडिया के साथ कुछ करना चाहती हैं, तो कुछ आपको कुछ अलग सी कनेक्शन महसूस होता है इंडिया के साथ? बहुत. I think that India is my second home. ओह! Even more, India is my soul. मुझे हुँ, ऐसा लगता है कि कोई हुँ, previous जन्म में मैं हुँ, Indian थी. हुँ, यहाँ, yes. So हुँ, that's why I feel a very deep connection. हुँ, Actually, I have graduated the हुँ, Tashkent State Institute of Oriental Studies, हुँ, हुँ, Indology and Hindi हुँ, हुँ, language. हुँ, So after that, I have worked so many years with Indians in the हुँ, Indian Embassy and हुँ, Cultural हुँ, Department, हुँ, and I run my business, my own business. I have opened my हुँ, हुँ, Indian cultural studio in Tashkent. हुँ, I had boutique of some हुँ, Indian items and outfits, which हुँ, were designed by myself. हुँ, So it was like Indian हुँ, styled हुँ, outfits. हुँ, Yes, and after that, I have just opened this my हुँ, project and take into account हुँ, the friendly relations of the two republics हुँ, and the the two republics and which are historically close to each other since the centuries, हुँ, and even more since the time of Great Babur. हुँ, The what are connected, what is connected. I mean, हुँ, our connections in हुँ, art, हुँ, in science, हुँ, in sport, हुँ, and in business, and हुँ, taking into account that the considerable number of हुँ, people from India come to Uzbekistan हुँ, and stay there not only just for short term हुँ, period, but for a long term. हुँ, Residence. It हुँ, can be more than uh, 20 years. So they हुँ, live in Uzbekistan, and they leave, हुँ, they settle हुँ, there,
they having their families, Mhm. their business, and all Mhm. that. So they Mhm. love Uzbekistan. Taking into account Mm. all that things, Mm. I think that this project One Love India Mm. has a very enormous potential Mm. in financial and Mhm. even more in multicultural ओके। yes aspect. बिल्कुल। ज़रीन मैं अगर अपनी बात कहूँ तो मैं भी 2018 में मुझे मौका मिला था उज़्बेकिस्तान जाने का। मैंने वहाँ पे लोगों को बहुत अच्छी तरीके से मिलते-जुलते देखा एंड इट इज़ अ गुड फीलिंग एंड आई एम स्टिल कैरिंग दैट फीलिंग। अ, आप अ, क क्या सजेस्ट करना चाहती हैं कि जो भारत के लोग हैं, अगर उज़्बेकिस्तान से जुड़ सकते हैं, तो वहाँ पे व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज़ कि जहाँ पे वो जुड़ कर के काम कर सकते हैं? या वहाँ पे वो अगर जाना चाहें या कोई बिज़नेस शुरू करना चाहें, तो क्या पॉसिबिलिटीज़ ऐसी हैं कि भारतीय भी अपना एक फ्यूचर देख सकें उज़्बेकिस्तान में? As I know now in Uzbekistan, more than 10,000 of Indians are now in Uzbekistan. ओके, ओके। So they're running out their business. हुँ, They mostly in हुँ, in हुँ। pharmaceutical ओके, yes ओके। field. हुँ, हुँ, So and we have so many हुँ, opportunities हुँ, for हुँ, Indians हुँ, for हुँ, business for in all aspects in all हुँ, हुँ, fields हुँ, हुँ, of business and हुँ, even many बहुत सारा हुँ, टीचर्स भी आते हैं हुँ, 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 हुँ। उन्होंने इंग्लिश पढ़ाते हैं हुँ, 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 यस एंड भी उन्होंने हुँ। इंडियंस योगा ऑल्सो। योग और हुँ, ऑफ हुँ, कोर्स हुँ, हुँ, रेस्टोरेंट भी हुँ, हुँ, खोलते हैं हुँ, हुँ, we have in Tashkent more than 10 हुँ, Indian restaurant now ओके। हुँ, if or if you would हुँ, ask हुँ, कि 2 साल पहले हुँ, कितना था हुँ, हुँ, या was it like it was much less so हुँ, मेरा मतलब है हुँ, कि हुँ, हुँ, बहुत सारे इंडियन हुँ, आते हैं हुँ, हुँ, और हुँ, they see that हुँ, Uzbekistan is very हुँ, good for हुँ, is very like हुँ, comfortable for making business and for हुँ, living. हुँ, लवली। एंड अगर हम अब दूसरी तरफ की बात करें कि उज़्बेकिस्तान से जो आने वाले लोग हैं, वो भारत में किस तरह की अपॉर्च्युनिटीज़ तलाशने की कोशिश करते हैं? या उनको क्या लगता है कि वो किन क्षेत्रों में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? अगर you mean अगर उज़्बेकिस्तान से या अगर उज़्बेकिस्तान से लोग भारत आना चाहें, तो वहाँ का व्यक्ति जो है, वहाँ के जो लोग हैं, वो क्या सोचते हैं कि हम किन-किन क्षेत्रों में जाकर के इंडिया में जाके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? tourism हुँ, in tourism ओके, aspect yes ओके। tourism food हुँ, हुँ, education हुँ, हुँ, I think that much more in हुँ, each in any in different हुँ, 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 spaces and etc. हुँ, वेरी गुड, वेरी गुड। जैसे आपने कहा ज़रीन कि आपको एक स्पेशल कनेक्शन फ़ील होता है इंडिया के साथ में। तो आपको ऐसा लगता है कि शायद आपके फ़ोरफ़ादर्स जब ये सिल्क रूट स्टार्ट हुआ और आना-जाना उज़्बेकिस्तान के रास्ते, भारत के रास्ते, बहुत सारे बिज़नेस या बहुत सारा स्पाइस बिज़नेस और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं जाती-आती रहीं। तो हो सकता है कोई आपका जो बुज़ुर्ग है, कोई ना कोई यहाँ से उनका ताल्लुक हो? शायद शायद। कभी नहीं सोचा मैंने सोचा कि कोई प्रीवियस जन्म में मेरा ऐसा कोई ताल्लुक था कि मैं यहाँ यहाँ रहती थी हुँ, इंडिया हुँ। में हुँ, हुँ। दिस इज फॉर श्योर हुँ, because even smells odors हुँ, all हुँ, that thing हुँ, which हुँ, in India which I हुँ, can feel in India मुझे ऐसा लगता है कि हुँ, कभी हुँ, हुँ, कहीं मैंने इसको सब चीज को महसूस किया हुँ, हुँ, किसी जन्म में हुँ, yes it was हुँ, for sure बिल्कुल। ज़रीन अगर भारत की महिलाओं की बात की जाए तो भारत की महिलाएँ बहुत कई सारे क्षेत्रों में आगे काम कर रही हैं, आगे बढ़-चढ़ कर के हिस्सा भी ले रही हैं। इवन अब जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें भी कंट्रीब्यूट कर रही हैं। वर्ल्ड का सिनेरियो अगर देखा जाए तो उज़्बेकिस्तान जैसे कि मैंने कहा कि मैं भी जाके देखा है मैंने, तो वहाँ की महिलाओं में भी काफ़ी उनके अंदर एक ऐसा कहा जाए आगे बढ़ने की काफ़ी ललक है उन महिलाओं के अंदर। तो आप कैसे देखती हैं आप अपने देश की महिलाओं को कि उनको कितनी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या उनके साथ अभी कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसे होनी बाकी हैं कि जो इंडिया के साथ जुड़ कर के हम लोग कर सकते हैं?
ऑफ कोर्स मैं जो अपने महिलाओं को बहुत ऑफ कोर्स जी। मैं तारीफ करूंगी हाँ। क्योंकि हमारी महिलाओं वेरी एक्टिव ओके। yes and very progressive and well mostly well educated and well mannered so यस। of course yes ऐसे है। तो बात तो आपको ऐसा लगता है कि उनको अभी काफ़ी आप भी उनको प्रमोट कर रही हैं, आप उनके लिए कुछ ऐसा सोचती हैं बिकॉज़ आप लगातार कुछ ना कुछ भारत के साथ करना चाह रही हैं। तो कोई ऐसे प्लान्स हैं आपके उनको लेकर हाँ के? मेरा एक प्लान है और इंशाल्लाह हम करेंगे हुँ, हुँ। फैशन फैशन अवार्ड हुँ, हुँ। हम करना चाहते हैं इंडिया हुँ, के साथ हुँ, हुँ। इंशाल्लाह यस इस स्प्रिंग में हुँ, हुँ। यस हम कर लेंगे हुँ, हुँ। बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान हुँ, यस बिल्कुल। अ, अब आप आई हैं यहाँ पर और मारवा स्टूडियो में आप पहले भी आ चुकी हैं। तो कुछ कहना चाहती हैं कि जब भी आप आती हैं मारवा स्टूडियो तो आपको कैसा महसूस होता है? डॉक्टर संदीप मारवा से आप कई बार मिल भी चुके हैं। तो कुछ यादें आपकी होंगी हो सकती हैं और आज भी आप आए हैं तो कुछ और सारी कुछ यादें आपकी हैं, तो कुछ कहना चाहती हैं मारवा स्टूडियो के बारे में? मारवा स्टूडियो मैं 2018 में आई थी हुँ, हुँ। and it was like very wonderful memories हुँ, हुँ। and हुँ, you're हुँ। well you're very heart opened हुँ, हुँ। open heart हुँ, हुँ। heart open हुँ, open हुँ। वेलकम। okay yes people जी। yes and you welcomed हुँ, हुँ। me our journalist delegation हुँ, yes on हुँ। that time we were हुँ, हुँ। covering the first visit of our हुँ, respected and हुँ। honorable Mr. Shafkat Mirziyoyev, President of Uzbekistan. हुँ, हुँ। Yes, and you welcomed us very हुँ, very हुँ। warmly. हुँ, हुँ। मिस्टर संदीप से मैंने मिला हुँ, हुँ। हाँ कई बार हुँ, हुँ। और उन्होंने इवन मुझे अवार्ड भी दे दिया हुँ, था हुँ, हुँ। यस मैं वही हुँ, स्टूडियो में बैठ रही थी हुँ, हुँ। मंच पे हुँ, हुँ। yes and it was very हुँ, great memories from you हुँ, and हुँ। thank you so much for हुँ, receiving me so हुँ, you're हुँ, very हुँ, हुँ, thank you हुँ, this is India हुँ, this is India when हुँ, where everything is unconditional हुँ, and हुँ, hospitality हुँ। as well ग्रेट, thank you थैंक यू सो मच। लास्ट सवाल आपसे मैं करना चाहता हूँ कि अ, आपकी निगाह में भारत को लेकर के बाहर जो छवि है, जो इमेज है इंडिया की, तो आप हमारे जो यंगस्टर हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहती हैं कि अ, आप लोग क्या सोचते हैं भारत के बारे में, भारत की इमेज के बारे में? और क्या लगता है आपको कि जो आगे आने वाला जो फ्यूचर है, उसमें इंडिया किस तरह का रोल अदा करना चाहता है? सो दैट द यंगस्टर आल्सो बी ब्रीफ्ड कि उनको भी इसके अंदर कंट्रीब्यूट करना है। तो आपके द्वारा मैं जानना चाहता हूँ कि आप उनके क्या कहना चाहती हैं, हमारे जो यंगस्टर हैं? I think that Indians used to be very patriotic, हुँ, very patriotic. हुँ, हुँ, So that's why I uh, so हुँ, India has a great culture, has a great history. हुँ, हुँ, India is India. हुँ, So and you are so lucky that हुँ, you have born in India हुँ, for now. हुँ, I mean, and you have to हुँ, pamper all हुँ, that thing हुँ, and to be I and to be proud of this हुँ, of India and that you are Indians हुँ, because of this like Mahan nationality and Mahan हुँ, country हुँ, बहुत great country बहुत great culture हुँ, and all that and we love India I हुँ, love India so that's why I have हुँ, uh, I'm in this हुँ, project and I'm doing this project because I want really to promote Indian हुँ, culture in Uzbekistan हुँ, हुँ, and Uzbek culture in India as well हुँ, for the वेरी sake नाइस। of our हुँ, friendship हुँ, yes जी। बहुत-बहुत शुक्रिया ज़रीन आपका कि आपने अपने दिल की बात हमारे साथ शेयर की और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरीके से भारत आती रहेंगी और अपना जो भी आपका प्रेम है, जो भी आप यहाँ करना चाहती हैं, वो कर पाएँ और हम इसी तरीके से आपको सहयोग करते रहें, आपके हर वेंचर में आप जो भी करना चाहती हैं और आपका जो खूबसूरत वेंचर है जो प्रोजेक्ट है वन लव इंडिया, तो वो ज़रूर कामयाब हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएँ हैं। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको शुक्रिया for जी, invitation थैंक and for यू, hospitality थैंक thank यू, you so थैंक यू, much I'm थैंक यू। grateful तो दर्शकों ये थे ज़रीन जहांजेब और
जैसा कि मैंने बताया कि वो एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार हैं और भारत के बारे में उनका जो सोचना है वो आपने सुन ही लिया है कि ये एक महान देश है और इस देश में पैदा होना अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है और आप इस भारत के होने की वजह से आप स्वयं गौरवशाली अपने आप को महसूस कर सकते हैं क्योंकि भारत बहुत पहले से ही तमाम सैलानियों की भूमि रहा है और एक आकर्षण भारत के प्रति लोगों में रहा है और जिसके चलते आज ज़रीन भी खिंची चली आई हैं। आज के लिए इतना ही, अगली बार किसी और मेहमान के साथ मैं हाज़िर रहूँगा। अब लेता हूँ इजाज़त, नमस्कार।